Hello everybody, welcome. My name is Abid. Today we'll discuss on the topic of sources of energy, and in which guys I have taken the subunit of your that is non-conventional sources of the energy, and in which guys we will discuss about the topic of hydroelectricity. So simply guys, you should be understand hydro. This is the scientific name of the water. Hydroelectricity. Electricity means simply light, and simply guys I will firstly give you overview that hydroelectric energy how we can produce. It is produced by the stored water being behind a dam, as water falls through the penstock, then water energy of motion spans the turbines. The spanning turbines turn electrical generator that transfer the water mechanical energy into the electrical energy. So simply ये क्या होता है, हम गाइज क्या है पहले वाटर को स्टोर करते हैं. स्टोर करने के बाद वो होती है गाइज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और यू कैन से सिंपली वो क्या होती है काइनेटिक एनर्जी. और जब वो मोशन में आती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं. तो वो काइनेटिक एनर्जी को जब हम पोटेंशियल देते हैं तो वहाँ पे आप सिंपली इसको हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सो गाइज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक ऑफ द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हाउ वी कैन प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. सो गाइज हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस फ्रॉम द हाइड्रो पावर, जिसको हम हाइड्रो पावर से डैम पहले बनाते हैं. डैम के बाद गाइस हम उसको काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल में लाते हैं, एंड मैकेनिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिसिटी में लाते हैं. इन 2015 हाइड्रो पावर जनरेटेड 16% ऑफ द वर्ल्ड टोटल इलेक्ट्रिसिटी एंड 70% ऑफ द रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी, एंड वाज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय अमाउंट 3.1 each year for the next 25 years. So guys, hydropower is produced in 150 countries, with the Asia Pacific region generating 33% of the global hydropower in 2013. China is the largest hydroelectricity producer, and with the 2,920 TWh production in the 2020, and representing 16% of the domestic electricity use. So this was the status, or you can say guys, this was the status at the data available for how many countries have been used this type of the technology, and they produce hydroelectricity, and how much percent they have been produced. So you have need to overview this topic, or thoroughly you have taken this reference. So guys, we can say here that the cost of hydroelectricity is relatively low, making it is competitive source of the renewable energy. The hydro station consume no water, unlike coal or gas plants. The typical cost of the electricity from a hydro station larger than the 10 megawatt is 3 to 5 US cent per kilowatt hours. With a dam and reservoir, it is also a flexible source rapidly as the little as the few seconds to adapt it to change energy demands. So guys, आप देख लीजिए कि सबसे पहले ये हम कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात. तो हम प्लांट पहले एक डैम को हम तामीर करते हैं, उसके बाद हम काइनेटिक एनर्जी वाटर को वहाँ पे स्टोर करने के बाद उसको उसकी जो स्पीड को बढ़ाने के लिए पोटेंशियल में लाते हैं, और वहाँ पे हमारा जो होता है मैकेनिकल एनर्जी जो होती है इट इज़ कन्वर्ट इनटू द आर्कन से इनटू द इलेक्ट्रिसिटी. सो गाइज, किस तरह की टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल करते हैं उसी के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं. टू अडाप्ट टू द चेंजिंग एनर्जी डिमांड्स, वंस ए हाइड्रोइलेक्ट्रिक कम्प्लेक्स इज कंस्ट्रक्टेड, द प्रोजेक्ट प्रोड्यूस नो direct waste, and it generally has a considerable lower output level of the greenhouse gases that photovoltaic power plants and certainly fossil fuel powered energy plants see also cycle green gas emission of energy resources. However, when construction in lowland rainforest areas, where inundation of a part of the forest is necessary, they actually emit up to the 3 to 8 more % greenhouse gas. तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, ग्रीन हाउस गैसेज को मतलब गैसेज जो हैं गाइस वजूद में आती हैं. आप देख लीजिए सॉरी आप देख लीजिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डैम बनाते हैं. अब कहीं पे भी अगर हम डैम बनाते हैं, अगर वहाँ पे फॉरेस्ट आएगा उसकी हम कटिंग करते हैं, अगर वहाँ पे कुछ भी तरह इकोसिस्टम पे काफ़ी इसका इफेक्ट पड़ता है. लेकिन गाइज पहले डैम को तामीर करते हैं, ये एक बांध हम बनाते हैं. डैम क्या होता है गाइज, एक बांध होता है वाटर को रोकने के लिए, और वहाँ से वो हाइट बन जाती है, और हाइट को बनने के बाद क्या होता है गाइज, उस वाटर को हम हाइट से नीचे गिराते हैं, जिसकी वजह से हमारा टर्बाइन चलता है. सो गाइज देख लीजिए यहाँ पे इनसाइड हाइड्रो पावर प्लांट क्या
क्या क्या होता है, दिस इज़ द रिजर्वर, जहाँ पे हम इनटेक होता है, जहाँ पे हम वाटर को कलेक्ट करते हैं। अब देख लीजिए यहाँ से हमारा डैम है, ये वाटर है, ये हमारा डैम है, और यहाँ से बिजली जो है जनरेट होती है, यहाँ पे ट्रांसफ़र होती है, यहाँ पे पावर हाउस है, यहाँ पे वगैरह वगैरह है। अब आप देख लीजिए इन टैंक में क्या होता है, वाटर होता है, कंट्रोल गेट्स होते हैं गाइज, उसके बाद पेन स्टॉक्स होता है जहाँ से ये वाटर चलता है, और ये हमारी टरबाइन होता है। तो वाटर का फंक्शन सिर्फ गाइस क्या होता है, वाटर मोशन में आना चाहिए और ये टरबाइन जो है ये रोटेट होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जनरेटर होता है और ये इलेक्ट्रिक चार्ज को यहाँ पे स्टोर करता है, फिर ये हमारा पावर हाउस है, तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी बनती है, ये आउटफ्लो ऑफ द वाटर है। तो हम गाइस ये कह सकते हैं कि इसमें मेन फंक्शन जो वाटर का क्या है, जब हम बांध बनाते हैं वाटर को रोकने के लिए, और ये वाटर जब मोशन में आता है, ये टरबाइन स्टार्ट होती है, स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे जनरेटर जो है ये चार्ज हो जाता है, और इसको ये ट्रांसफार्म है, और उसके बाद ट्रांसफार्मर के बाद ये पावर हाउस है, और उसके बाद ये प्रोड्यूस करता है मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वाटर की, इसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और गाइज यहाँ पे आप सॉरी, यहाँ पे आप देख लीजिए, दूसरा मैंने आपको यहाँ पे बताया, ये देख लीजिए यहाँ पे हमारा क्या है, वाटर डायरेक्टली आएगा, ये गेट है, वाटर के बाद ये टरबाइन पे गिरता है, और उसके बाद किस तरह से यहाँ पे गाइज हमारा इलेक्ट्रिसिटी बनता है। आप देख लीजिए इस तरह से हम बांध बना लेते हैं। तो आपको जब भी बात की जाएगी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की, आपने सिंपल भी आप लिख सकते हो कि फर्स्टली वी मेक ए डैम, एंड वी कैन से वी कैन मेक ए डैम एंड कलेक्ट वाटर, एंड the water will become in a kinetic energy, and then it will be changed into the potential energy, ठीक है, फिर ये potential energy में change होता है। and this is all about the discussion of the hydroelectricity. So guys, I hope that you understand this topic properly, how we make hydroelectricity and what kind of the technology we use that time. So guys, in the end I heartily request you please subscribe and share and like these videos.